Abhijit, are you there? Yes, sir. Okay. So, Abhijit, please start. First, you brief that why you were not able to get the good marks earlier, and then let's proceed further. And others, please turn on your videos. Yes. So I would like to ask everybody to turn on their videos so that I could interact in a better way. So uh, this year I got All India rank 487, and since last two attempts, like this was my fifth interview in the UPSC CSE, and in the last two attempt, I got 400 plus. Like in last attempt, I got 420 plus, and this year I got around 410 marks in the GS. So few things have changed for the last two attempts, which helped me to get really good marks in the GS. Because I used to get around 360s, 370s in the GS. So there are some fundamentals when you approach the GS papers. So first of all, we need to understand, uh, sir, can you ask people to turn on their videos if there are some I SOMP was just students who about throw. to type this message. यार थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखा लो, कोई आया है तुम्हें 400 प्लस नंबर की स्ट्रेटजी बताने, ऐसे तो मिलेगा नहीं इंटरेक्ट करने को कहीं पे. Show some respect for someone who is giving time to you. And only those who turn on their videos, उनका ही क्वेश्चन लेना अभिजीत. Yes, sure. Okay. Yes. So we need to understand there are four GS papers, and each GS paper carries 250 marks. So that means each and every GS paper is equally important as other. So first of all, what we do like during the preparation, we actually make strategy for essay paper, then GS papers, and then optional papers. But we need to understand that we need to do different strategies for each GS paper. What we do, we follow the common strategy. That is the biggest mistake aspirants do. That we follow the umbrella GS strategy, which we try to apply for each GS paper, and that is the biggest mistake, because we need to understand GS1 has different set of subjects, GS2 has different set of subjects like GS3 and GS4. So each GS paper requires different strategy, and that means we need to approach each GS paper differently. एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होगी ना, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ईच जीएस पेपर रिक्वायर्स डिफरेंट लैंग्वेज. हर एक जीएस पेपर की अपनी खुद की लैंग्वेज है. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई हैव टू टेल यू कि लेट्स से जीएस1 हम पेपर अप्रोच कर रहे हैं. सो जीएस1 में हमारे पास तीन बेसिक सब्जेक्ट्स है. हिस्ट्री है, देन सोसाइटी है, देन ज्योग्राफी है. But within history, we have art and culture, then modern history, then post-independence history, and world history. So in चारों सब topics में we need different language. Even within a GS paper, we require different language. अगर GS1 में जाओगे तो GS1 में हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर में आर्ट एंड कल्चर रिक्वायर्स डिफरेंट लैंग्वेज. Similarly, society requires different language. Geography, within geography also, there are two subtopics. One is physical geography and other one is human geography. तो ये से हर एक जीएस के लिए एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए एंड डिफरेंट लैंग्वेज चाहिए. So that we need to understand कि we cannot follow common strategy for each GS papers. That you need to keep this into your mind. What we try to do, we follow same set of approach.
कि चलो नहीं पॉइंटर्स में ही लिखना है तो पॉइंटर्स में ही लिखना है, स्टैट्स डालने हैं तो हर एक क्वेश्चन में हम स्टैट्स डालेंगे, फ्लो चार्ट निकालना है तो फ्लो चार्ट ही निकालेंगे, डायग्राम निकालनी है तो डायग्राम ही निकालेंगे, मैप निकालना है तो मैप ही निकालेंगे। नहीं, हर एक सब टॉपिक पे जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वो डिमांड क्वेश्चन की क्या है, तो उसको अप्रोच कैसे किया जा सकता है, तो वो डिफरेंट है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर रफ पेजेस आपके पास है, कोई ब्लैंक पेजेस, तो ये चीजें लिखना उसमें। एंड हमेशा ये चीज याद रखना कि देर आर थ्री फंडामेंटल पिलर्स ऑफ द मेंस प्रिपरेशन। तीन ऐसे पिलर्स है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते एनी हाउ। इफ यू आर स्किपिंग एनी वन ऑफ देम, देन यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल थ्री वंस अगेन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। एंड कीप दिस इन योर माइंड दैट ये तीन फंडामेंटल पिलर्स के स्कीप करके कुछ नहीं हो सकता। एंड दे all require equal amount of attention and importance. Okay, and those three fundamental pillars are: first one is content, second one is pyqs analysis, and third one is answer writing. Okay, first one is content, second one is pyqs analysis, third one is answer writing. Okay, so within a content, what are the sources? That is very important. And listen to this very carefully, that there are different types of resources. First one is standard book. Okay, second one is notes, कोई टॉपर्स ने नोट्स बनाए हो, या फिर किसी क्लास के नोट्स हो, या फिर एसओएमपी के नोट्स, जो कि बहुत बढ़िया है। फॉर फ्यू टॉपिक्स तो आप बाहर का कुछ भी मत पढ़ो, तो सिर्फ एसओएमपी के नोट्स पढ़ोगे तो भी सफिशियंट है। तो वो क्लासेस के नोट्स या किसी टॉपर्स के नोट्स, या फिर जैसे एसओएमपी के थीमेटिक नोट्स है, बहुत बढ़िया है वो, जो मैंने 2 साल फॉलो किए थे, तो वो नोट्स। थर्ड वन इज टॉपर्स कॉपीज, एंड फोर्थ वन इज करंट अफेयर्स। ओके, सो लेट मी इलाबोरेट दिस, कि बुक्स, जैसे अगर आप आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द बेस एंड लैंग्वेज आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको एक बेस बुक या बेस नोट्स उठाने हैं, जो बिफोर मेकिंग माइक्रो नोट्स आपको पढ़ने हैं टू गेट द लैंग्वेज। आप सिर्फ माइक्रो नोट्स पढ़ोगे जो टॉपर्स ने दिए हो या फिर किसी ने भी दिए हो, जो अवेलेबल हो ऑनलाइन, तो उसको पढ़ के कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ रोट लर्निंग करोगे, रट्टा मारोगे, एंड यू विल जस्ट रिफ्लेक्ट द कीवर्ड्स, but the depth which is required in the answer is not going to come. Okay, so that is very important. You cannot reflect the micronotes straight away. For that you will have to read some base material, and that base material could be standard books or notes like SOMP notes or any class notes. And value addition जो content में है, that can be done through टॉपर्स कॉपीज एंड करंट अफेयर्स। जो वैल्यू एडिशन आपको करनी है ना अपने नोट्स में, तो वो करनी है, और वो कितनी होगी? 5%। द स्कोप ऑफ वैल्यू एडिशन फ्रॉम द टॉपर्स कॉपीज एंड करंट अफेयर्स वुड बी 5%, दैट्स इट। 95% of your notes should be based on standard books or notes of any class. Okay, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? एंड दैट वैल्यू एडिशन आपको टॉपर्स कॉपी से कौन सी करनी है? जो टॉपिक, जो कीवर्ड, जो एग्जांपल आपने कभी पढ़ा नहीं है, एंड दैट टॉपर हैज गिवन दैट एग्जांपल और एनी न्यू टर्म और कीवर्ड, और लेट्स से कुछ मैप बनाया हो उसने, जो उसने खुद एफर्ट्स मारे हैं ना। व्हाई वी आर गोइंग फॉर द टॉपर्स कॉपीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि टॉपर्स हमेशा कुछ ना कुछ एफर्ट्स मारते हैं, बहुत सारा, एंड यू आर गेटिंग दोज पॉइंट्स जस्ट बाय गोइंग थ्रू द टॉपर्स कॉपीज। मतलब कितना आसान है, अगर किसी को कंटेंट एनरिच करना है ना अपना अपने नोट्स में, तो जस्ट पिकअप 2 or 3, मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 टॉपर्स फॉर ईच जीएस पेपर। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट टॉपर्स मस्ट हैव रिटन दैट टेस्ट बिफोर द मेंस, 15 दिन या 20 दिन पहले। दैट्स इट। इस बार टॉपर आया और पिछले साल के आप उसकी कॉपीज पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू।
हमेशा याद रखना कि उस लास्ट मंथ में, उस 15 डेज में उसने वो लिखा है, क्योंकि ना हर एक दिन हमारा अप्रोच चेंज होता है, हर एक दिन हमारा आंसर राइटिंग चेंज होता है। सो बहुत डायनामिक आंसर राइटिंग होती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो टॉपर उस साल का है, उसी साल उसने मेंस से पहले 15-20 दिन वो टॉपर कॉपी लिखी हुई हो। ओके। और मिनिमम 2 निकालने हैं जीएस, ईच जीएस पेपर के लिए, और मैक्सिमम 3, नौ, 3 से ज्यादा पढ़नी नहीं है। ठीक है। और उसमें भी ये देखना है कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट वाले मार्क नहीं देखने हैं कि जिसको मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 ही है वो उस जीएस में। थोड़ा वैसे भी वाले देखने हैं जो एक्चुअली अबव एवरेज हो, 5-10 मार्क्स है। तो वो 3 निकालने हैं कि टॉपर्स में, टॉप 5 टॉप 10 में जो हो वो, और बाकी अबव एवरेज वाले। अगर एवरेज जीएस 4 में 120 ला रहे हैं सब लोग, तो 130, 125 वाले एक दो लोग हमारे टॉपर्स कॉपीज में रखने हैं। क्यों? क्योंकि वो अप्रोच मिडिल पाथ वाला अप्रोच होता है। और वो उन 3 टॉपर्स में से कोई एक टॉपर ऐसा होना चाहिए जिसका और आपका अप्रोच थोड़ा टू द लाइन होना चाहिए। अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि यू स्टार्टेड कॉपिंग द स्ट्रैटेजीज ऑफ दैम, तो फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में कन्वर्ट हो जाती है, और वीकनेस तो वीकनेस ही रहती है। सो ट्राई टू फाइंड आउट दोज पीपल हु एक्चुअली मैच योर स्ट्रैटेजी और योर वे ऑफ आंसर राइटिंग। गॉट इट? सो दैट इज द टॉपर्स कॉपीज। सेकेंड वन इज करंट अफेयर्स। जो वैल्यू एडिशन करनी है वो करंट अफेयर्स में करना है। सो दोज पीपल, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ओके, just take it with the pinch of salt. Those who are not having PSIR option, or those optional which requires current affairs value addition, they must give only 30 to 35 minutes to the newspapers. That's it. Don't read newspapers for 2 hours, 2.5 hours. You are wasting your time. Okay. वैल्यू एडिशन करंट अफेयर से कितनी हो सकती है? 5 से 10%, दैट्स इट। जो आपका बेस है ना, 90 to 95%, वो स्टैंडर्ड बुक्स नोट से आता है। तो वो जो ओवर डिपेंडेंस ऑफ द न्यूज़पेपर्स है ना, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्या करते हैं लोग ना, 300 दिन, 250 दिन हर रोज पेपर के नोट्स निकाल रहे हैं। इफ यू डू, और इफ यू हैव टू प्रिपेयर दोज नोट्स on the in the 11th hour, you cannot revise them, not at all. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है। आज ऐसे देना है, कल GS1 देना है, GS2 देना है, परसों आपको GS3 और GS4 देना है। 3 दिन 5 पेपर देने हैं। ठीक है। तो ऐसे के पहले दिन क्या करोगे आप? तो ये 4 दिनों में आपको 5 पेपर्स की रिवीजन करनी है अच्छे से। तो आप आपके आपने नोट्स है ना आप खुद के, वहां इतने ज्यादा बड़े नहीं बना सकते कि यू कैन नॉट रिवाइज देम। ओके। कुछ टॉपिक्स है उनके, मैं तो ये बोलता हूं कि शॉर्ट नोट्स छोड़ दो, माइक्रो नोट्स निकालो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और कुछ कुछ टॉपिक्स है ना, हमारे दिमाग पे ना सेल्फ बिलीफ रखो कि नो, योर ब्रेन विल रिमेंबर दिस, सो स्टार्ट डूइंग दैट। हम क्या करते हैं ना, शेड्यूल, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, 12th तक हम वही करते हैं, हर बार वो हमारे नोट्स में होता है। नो, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ दैट आई कैन रिमेंबर दीज पॉइंट्स, and I need to make notes of those topics or those points which I cannot remember easily. That is very important. नोट्स निकालने का मतलब क्या है? जो चीजें आप आसानी के साथ याद नहीं रख सकते, उसके नोट्स निकालना है। जो याद रह रहा है उनके भी आप नोट्स बना रहे हो। और नोट्स इतने बल्कि हो जाते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल, कुछ दिनों पहले मेरे पास एक लड़का आया था अपने नोट्स लेके। कैन यू इमेजिन, उसने पॉलिटी के इतने बड़े नोट्स निकाले थे, 150 पेजेस के नोटबुक में। मैंने बोला इससे अच्छा तू लक्ष्मीकांत पढ़, क्यों उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है? नोट्स हमेशा, कोई भी चीज हो तो वो, अगर 100 पेज के बुक है तो उसमें से 10 पेजेस के ही नोट्स निकलने चाहिए, अगर प्रोपोर्शनलिटी में बात की जाए तो ये हमेशा याद रखना कि माइक्रो नोट्स निकालो। GS1 के आपके नोट्स 100-150 पेजेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें आर्ट एंड कल्चर भी होना चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री भी होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री भी होनी चाहिए, देन सोसाइटी भी होनी चाहिए, एंड ज्योग्राफी भी होनी चाहिए। अगर 100-150 पेजेस से आप ज्यादा नोट्स ले रहे हो, तो ऐसे पेपर के बाद आपको GS1 पढ़ना है, GS2 भी पढ़ना है थोड़ा बहुत, आप नहीं पढ़ पाओगे। और आप ऐसे सोचोगे नहीं यार, मेरा ये रह गया, मेरा रिवीजन रहेगी। नो,
ऐसे नहीं करना है। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनके नोट्स बनाने और माइक्रो नोट्स बनाने, हमेशा याद रखना, ठीक है। जिसका बेस कहाँ से आएगा? स्टैंडर्ड बुक या किसी टॉपर्स के या फिर किसी क्लास के नोट से। ओके, ठीक है। तो ये होगी पहली स्टेज कंटेंट वाली। ओके, जिसमें हमने क्या देखा कि स्टैंडर्ड बुक्स प्लस क्लास नोट्स और टॉपर्स नोट्स प्लस टॉपर्स कॉपीज से वैल्यू एडिशन कुछ करनी है, एंड चौथा है करंट अफेयर्स से। सो अब ये ध्यान में रखना कि करंट अफेयर से कैसे वैल्यू एडिशन कमी करनी है। तो करंट अफेयर्स के दो रिसोर्सेस है। एक, जो आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो या फिर पीटी पढ़ रहे हो या फिर मेंस 365 पढ़ रहे हो या फिर किसी भी क्लास के पढ़ रहे हो, वट एवर। और अलोंग विद दैट आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो भले ही कुछ भी हो, हिंदू कोई पढ़ता है या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, दो न्यूज़पेपर्स मत पढ़ो, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ो बस। और ये चीज ध्यान में रखना, एक क्विक गो थ्रू करना है हमें, ठीक है। क्विक गो थ्रू जब हम न्यूज़पेपर्स पे करेंगे ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो ईच एंड एवरी कीवर्ड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ ईच एंड एवरी जीएस पेपर। आप अपने जीएस के जो सिलेबस है ना, सिंगल पेज पे प्रिंट आउट निकालो और जहां पे आप बैठ रहे हो ना वो उसके सामने चिपकाओ, सो दैट यू कुड गो थ्रू दिस सिलेबस बार बार। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी न्यूज़पेपर में किसी भी टॉपिक पे एग्जांपल आ रहा है ना, सो यू कैन ऐड दैट इन योर नोट्स। फॉर एन एग्जांपल, जैसे जून महीने में इस साल लोकल मुंबई की लोकल ट्रेन में एक एक्सीडेंट हुआ, बराबर, जिसमें कुछ लोग मारे गए। एंड आफ्टर दैट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन केम अप विद द प्लान टू एक्सपांड, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 3 कोचेस ऐड कर दिए, देन ऑटोमेटिक डूअर्स। सो दिस इज व्हाट, ये एग्जांपल जीएस 3 में जा सकता है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि जब रेलवे सेफ्टी पे आएगा ना, तो यू कैन राइट दिस एग्जांपल, इन जून 2025 द रेलवे एक्सीडेंट हैपेंड इन द लोकल ट्रेन इन मुंबई, विच मेड डेथ्स, जो भी है 8 डेथ्स है ऑफिशियल, जो भी नंबर आया है, तो वैसे डालना है उसको, ठीक है। दूसरी चीज, अब दूसरा एग्जांपल आया था वो उड़ीसा कैडर वाला आईएएस, उसका नाम, जो करप्शन के केस में पकड़ा गया। सो वो हम डालेंगे जीएस 4 की अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, देन probity in the governance. So these kind of examples you need to collect. Along with that, you need to collect the case studies जिसमें सक्सेस हुआ हो, पॉजिटिव कुछ हुआ हो, जो कि सक्सेस स्टोरी है। तो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी pointer in your syllabus, so that you could collect the examples in a better way and in a quicker way. Okay, got it? So more than 40 minutes you must not give time for the newspapers, ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स। और एक आध एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ऐसे होता है ना, अगर आप कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो हर रोज रेगुलरली, सो यू विल रियलाइज कि कुछ कुछ न्यूज ना बहुत रिपीटेटिवली आ रही है उसी टॉपिक पे। तो अगर उस टॉपिक में से एक भी न्यूज एडिटोरियल आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो दैट टॉपिक विल बी कवर्ड। ओके, सो देर इज नो नीड टू रीड ईच एंड एवरी एडिटोरियल कमिंग ऑन द सेम टॉपिक। लिसन एंड कीप दिस इन योर माइंड कि बहुत ओवरडू नहीं करना है हमें। आप 1000 पेजेस पढ़ रहे हो और सिर्फ रिप्लिकेट 5 और 10 पेजेस ही कर पा रहे हो आंसर राइटिंग में, देन देर इज नो नीड टू रीड ऑल दोज पेजेस एंड ऑल दोज कंटेंट। ओके, कम पढ़ना है, सिर्फ रिपीटेटिवली पढ़ना है। ओके, सो दैट इज द कंटेंट। सेकेंड वन इज पीवाईक्यूज एनालिसिस। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना पीवाईक्यूज एनालिसिस, कि अगर आप उसको ठीक से एनालाइज कर दोगे, तो यू विल फाइंड थीम्स एंड सब थीम्स। ओके, लाइक जीएस 1 में आर्ट एंड कल्चर में 3 बेसिक डायमेंशंस है, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। ओके, विद इन आर्ट फॉर्म्स देर आर 6 to 7 types of art forms: paintings, sculptures, music, dance, okay, pottery, coins. So these are sub dimensions in the art forms. Then there is architecture.
ओके, सो अब सुनाई दे रहा है? कैन यू मी? या। Yes, sir, you सो are audible. या सो द थिंग इज पीवाईक्यूज एनालिसिस, जिसमें अगर आप देखोगे, जैसे आई वाज एक्सप्लेन, ओके, सो देर आर थ्री डायमेंशंस इन द आर्ट एंड कल्चर। तो एक है आर्ट फॉर्म्स वाली, दूसरी आर्किटेक्चर वाली, तीसरी है लिटरेचर वाली। सो सवाल जब आता है ना, सो उनमें से किसी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पे आएगा। मैं वर्टिकल जो बोल रहा हूँ ना, वो है आर्ट फॉर्म्स, जो कि मैंने 6-7 एक्सप्लेन किए थे। दूसरा आर्किटेक्चर। अगर आर्किटेक्चर में आप देखोगे, देर आर रॉक कट आर्किटेक्चर, देर आर केव्स, देन देर आर पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, चैत्यास, विहारास, टेम्पल्स। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। एंड देन देर इज अ लिटरेचर, जो कि वन डायमेंशन है, उसमें उसमें मल्टी डायमेंशंस नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल अगर एक्स एक्सिस आप निकालोगे, तो वो क्रोनोलॉजिकल होगा, कहां से? प्री हिस्ट्री टिल मॉडर्न। ओके, तो प्री हिस्ट्री टू मॉडर्न, और उसमें वो वर्टिकल्स होंगे, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर प्रिपरेशन करना है, थीम्स, सब थीम्स, पीवाईक्यूज एनालिसिस करना है, तो सवाल उसी पे आते हैं। अगर इस बार गुप्ता का टेम्पल आर्किटेक्चर पूछ लिया, तो नेक्स्ट साल मौर्यन के बारे में पूछ सकते हैं, वो आर्किटेक्चर भी पूछ सकते हैं, लिटरेचर भी पूछ सकते हैं। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी पीरियड, the each and every dimension. Okay, and that you will understand through the PYQs analysis. Same with modern history, same with society, same with geography. So हर एक पेपर में वो चीज है। and if you do proper PYQs analysis, you will understand कि जो themes और सब themes हम find out कर रहे हैं ना, तो उसी पे 60 to 70% क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस के, जो कि उसके विदाउट, अगर आप कुछ ना करोगे ना, तो भी आपको एक बेसिक मार्क्स आ जाएंगे। समझ रहे हो? अगर सिर्फ वो थी करके जा रहे हो, ठीक है, तो वो एक वो चीज होगी। अब पीवाईक्यूज एनालिसिस क्यों करना है, वो हमेशा याद रखना। थीम्स हमें ढूंढनी है, सब थीम्स हमें ढूंढनी है। अब इस थीम्स का और सब थीम्स का हमें फायदा कहाँ करना है? टू मेक रेडीमेड टेम्पलेट्स एंड फ्रेमवर्क्स। ओके, सो as you like everybody knows that कि you have to write 10 marker within 6 to 7 minutes, 15 marker within 11 to 12 minutes, and 20 markers within 15 minutes. ओके, 7 6.5 मिनट 7 मिनट में एक 10 मार्कर लिखना है, 11 मिनट में आपको 15 मार्कर लिखना है, और 20 मार्कर आपको लिखना है 15 मिनट्स में। ओके, सो देर विल बी questions around 6 to 7 or 8 questions in each GS पेपर, कि जो रिपीटेटिव थीम्स पे आए हुए हैं वो, ठीक है। अगर मान लो आप 8 सवाल उसी, हमें रेडीमेड टेम्पलेट्स बनाने हैं, रेडीमेड फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, सो दैट वी कुड सेव अवर 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स और 1 मिनट पर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो उसका कम्युलेटिव इफेक्ट ये होता है कि हर एक जीएस पेपर में आप 5 से 6 मिनट, 4 से 5 मिनट बचा सकते हो, ठीक है। उस 5-6 मिनट का आप फायदा कहां पे लोगे? जो सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, और विच रिक्वायर्स सम रिकॉलिंग, प्रॉपर रिकॉलिंग, तो उसमें वो इन्वेस्ट करने हैं, ना कि उस सवाल में जो नहीं आ रहा है आपको। समझ में आ रहा है? जिस जिस पे आपको पास कुछ कंटेंट नहीं है। व्हाट वी tend to do, we tend to invest more time in those questions on which we do not have any content, or we don't know anything about it। उसमें अगर आप 10 मार्कर में 8-9 मिनट दे रहे हो और आप कुछ भी लिख के जा रहे हो, तो क्या होगा इससे? एक तो आपका टाइम जाएगा, और उससे, पता है आपको, अगर कुछ नहीं आता, आपके पास कंटेंट नहीं है, ठीक से समझा नहीं है वो सवाल, कुछ नहीं है आपके पास, आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मार्क्स मिलेंगे उसमें, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे।
ये ध्यान में रखना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको 8 मिनट दे रहे हो, 6 मिनट दे रहे हो, देयर यू आर मेकिंग मिस्टेक। आपको वो मिस्टेक नहीं बनानी है। जिस चीज में हर एक जीएस पेपर ना, दो सवाल ऐसे होंगे जिस जिस पे किसी के पास कुछ कंटेंट नहीं होगा। जैसे जीएस वन में ट्विस्टर आया था इस बार। ट्विस्टर को किसी के बहुत ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल, कुछ ऐसे लोग थे ना, 1% 0.1% जिनके पास उसके बारे में कुछ कंटेंट था। बाकी तो जनरल कंटेंट था सबके पास। तो उस सवाल में ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है, हमेशा याद रखना। ठीक है। तो तीन चीजें हो गई पीवाईक्यूज एनालिसिस की वजह से। ठीक है, पहले तो क्या करना है हमें, उस चीजों पे टाइम बचाना है जिस जिस पे हमने रेडीमेड फ्रेमवर्क्स और टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, जो थीम्स रिपीटेटिवली सब थीम्स पूछी जा रही है। दूसरी चीज, वो टाइम हमें इन्वेस्ट करना है उन क्वेश्चंस पे विच रिक्वायर्स रिकॉलिंग एंड ऑन विच यू हैव कंटेंट। ठीक है। और तीसरी चीज, हमें उस चीज पे टाइम और हमारा ब्रेन ज्यादा यूज नहीं करना है जो किसी को पता नहीं है, जिसके ऊपर हमारे पास कुछ कंटेंट नहीं है। मैक्स टू मैक्स 2-3 मिनट्स में लिखो, ब्रॉडर स्ट्रक्चरिंग करो, एक दो मिनट एग्जाम्पल दे दो, फ्रेमवर्क दे दो, बस खत्म। ज्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके। ठीक। थर्ड पिलर इज आंसर राइटिंग। ओके। तो उस आंसर राइटिंग में वी हैव 4 स्टेजेस। ठीक है, जब आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसमें 4 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, अगर कोई लिख रहा है ना रफ पेज पे, वो लिखना कि रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। ओके। एंड mark or encircle the parts and subparts which is being asked in that question. Okay. For an example देता हूं मैं आपको। What are the ocean currents and describe the factors responsible for its formation, for their formation, and give the implications of them. What are the ocean currents and the factors responsible for their formation and give the implications of them. Okay, so this is the question. अब इसमें क्या करना है, आपने 2 बार पढ़ा। यू हैव टू एनसर्कल द पार्ट्स एंड सब पार्ट्स। तो इसमें 3 सब पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज व्हाट आर द ओशन करंट्स, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज देयर फैक्टर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, सेकेंड वन। एंड थर्ड वन इज देयर implications. Okay. And if this is the 15 marker, then you need to understand कि ओशन करंट्स पे 3-4 मार्क्स वेटेज है और बाकी 5-6 5-6। ओके। कि उसका फॉर्मेशन वाला 5-6 को आएगा और उसके इंप्लीकेशंस 5 या 6 मार्क्स को वेटेज है उसका। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू अलॉट द स्पेस। ओके। अगर 3 पेजेस है तो 3 पेजेस पे आप करंट्स लिखोगे कि व्हाट आर दी करंट्स। ठीक है। उसका एक ब्रीफ आइडिया दोगे 2-3 लाइन में। ठीक है। फिर एक मैप बनाओगे, वर्ल्ड मैप, कि जिसमें आपने एक 6-7 ओशन करंट्स निकाले हो। फिर देन सेकेंड पेज पे आओगे, देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फॉर्मेशन। उसमें आप 2 लिखोगे, प्राइमरी फैक्टर्स, सेकेंडरी फैक्टर्स। तो प्राइमरी फैक्टर्स में फिर से 4 सब फैक्टर्स लिखोगे, सेकेंडरी फैक्टर्स में फिर 3-4 जो सब फैक्टर्स है वो लिखोगे। ठीक है। फिर तीसरे पेज पे आओगे, देन इम्प्लीकेशंस। अब इम्प्लीकेशंस उनके, आप सिर्फ पॉइंट्स में नहीं जाना है, उसमें भी सब इम्प्लीकेशंस लिखने हैं। ऑन क्लाइमेट, ऑन फिशिंग, ऑन नेविगेशन। समझ में आ रहा है आपको हमें क्या करना है? सो विद इन सब टॉपिक या सब पार्ट्स वी हैव टू फाइंड और डायमेंशंस। अगर वो सब हेडिंग दोगे ना आप, सो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट ही और शी हैज रिटन प्रॉपर आंसर। और इससे क्या फायदा होगा, आपकी रिकॉलिंग अच्छी होगी। समझ में आ रहा है? सो फाइंड आउट सब डायमेंशंस विद इन द डायमेंशंस। गॉट इट? ओके। सो फर्स्ट वन इज रीडिंग द क्वेश्चन ट्वाइस and understanding the subparts and parts and demand of the question. Second stage is structuring, जिसमें आप पार्ट्स एंड सब पार्ट्स को सब हेडिंग बना रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ओशन करंट क्या है? ठीक है।
दूसरा उसको मैप निकाला। दूसरी सब हेडिंग होगी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फॉर्मेशन। तीसरी सब हेडिंग होगी इम्प्लीकेशंस ऑफ द ओशन करंट्स। ओके, देन अगेन विद इन सब हेडिंग और दो चार सब हेडिंग होगी, कौन सी? कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल में प्राइमरी फैक्टर्स, secondary factors. Then in the implications, you can write on climate, on fishing, on navigation. ओके, सो ये होगी सेकेंड स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग। थर्ड स्टेज में आपको करना है प्रायोरिटाइजिंग द पॉइंट्स। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप एक दो तीन जगह लिखना है। ऐसे नहीं करना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपने पीछे लिख लिया। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फॉर्मेशन वाला थिंग, अगर आपको प्राइमरी फैक्टर्स एंड सेकेंडरी फैक्टर्स नहीं याद आए, टोटली जनरलाइज पॉइंट्स याद आ गए, तो आपको ये जनरलाइज पॉइंट्स लिखते समय ये भी ध्यान रखना है कि मोस्ट कॉमन कौन सा रीजन है जिसकी वजह से फॉर्म होते हैं ओशन करंट्स। आप वो वाला लास्ट नहीं लिख सकते, सेकेंड लास्ट नहीं लिख सकते। तो ये हमेशा ब्रेन को एक हैबिट बनाना है हमें, सो दैट वी कुड प्रायोरिटाइज द पॉइंट्स। और ये कैसे आएगा? ये विद द प्रैक्टिस आएगा। सेकंड, इसको आपको मसल मेमोरी बनाना है। फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, आई विल टेल each and everything about it in the later phase of the session. Okay, just remember, second, the structuring; third, the prioritizing the points; and fourth one is, which is very important to get that extra mark in each answer, that is examples, data or stats about that answer or about the demand of the question. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि इम्प्लीकेशंस क्या है। इम्प्लीकेशंस में हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट दे रहे ऑन क्लाइमेट, सेकंड दे रहे ऑन फिशिंग। तो ऑन फिशिंग में दे रहे तो हमें जो एग्जांपल है ना वो लैब्राडोर वाली कोस्ट, कनाडा की, जो डॉगर बैंक बोलते हैं, जो यूके में भी है, ठीक है। देन नेविगेशन में हमें क्या लिखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न ड्रिफ्ट का यूज होता है नेविगेशन ऑफ द शिप्स के लिए। फिलीपींस टू मैक्सिको जाएगा ना कोई, तो उसके लिए। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, दैट एक्स्ट्रा mark, half mark or extra 1 mark, you will get through these examples and data. Got it? And that examples can be general examples from the standard notes or standard books, and second one would be from current affairs and topos copies. तो हमें कहां से डेटा और एग्जांपल्स ऐड करना है? तो टॉपर्स कॉपीज एंड करंट अफेयर्स से। ओके, so that are the four stages of the answer writing. First one is reading the question twice, then understanding the demand and parts and subparts which are being asked. Second one is structuring, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चरिंग होगी रफ में। देन थर्ड वन इज जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं उसमें उसका प्रायोरिटाइजिंग होगा प्रॉपरली, एंड टू सब्सटैंशिएट ईच एंड एवरी पॉइंट यू आर राइटिंग, give examples and data or reports or recommendation. That is the fourth stage, which will make examiner to understand that you know each and everything, and you are not throwing the points or you are not dumping the knowledge. Okay, again, अब इसमें आंसर राइटिंग में या फिर इस अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा ये आपके सामने डेस्क पे लिखा होनी चाहिए ये चीज, दैट राइट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, नॉट व्हाट यू नो। राइट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, नॉट व्हाट यू नो। हमेशा क्या होता है ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक एस्पिरेंट्स करते हैं या फिर हम लोग करते हैं, वो है डंपिंग द नॉलेज। They are not going to judge you by the knowledge or the content you are writing, though you are writing very complex language using literary uh, theories or literary material, or giving thesis like a PhD holder. They are not going to give you marks on that. They will give you marks on whether you have fulfilled
the demand of the question. That's it. They are not going to check your background. क्या आपने 10 साल पढ़ाई की है, 4 साल पढ़ाई की है या 6 महीने पढ़ाई की है. If you are fulfilling the demand of the question, they'll give you good marks. If you are not fulfilling it is very simple. What we need to do, fulfill the demand of the question. That's it. ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ओवर डू करना नहीं है, ओवर डंपिंग करनी नहीं है. And that is the mistake which I had done in my earlier attempts. In those 3 interviews, and for those, especially 2019 and 2020 means, in which I cleared the means, but I could not get good marks in the GS papers because of the dumping of the knowledge, dumping of the content. And I used to get diverted, and I was not writing what is being asked. Rather, I was writing what I know about that topic. और उसमें इतना सही लिखता था. Then I used to come back and I used to say, यार मैंने बहुत सही लिखा है, इस बार तो मेरे बहुत सही मार्क्स आएंगे, मुझे पता है. I'm definitely getting 410 plus. But after the results, after the mark sheet, I used to think कि यार क्यों नहीं आए. Then I started realizing in the 2020 कि नहीं यार, कि ये गलत जा रही है चीज है. क्योंकि क्या है ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की वजह से ना आपका एक कंटेंट बहुत स्ट्रांग बन जाता है और आपकी स्लेट है ना बहुत ओवर राइट की जाती है. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू कीप योर थिंग्स लिमिटेड. हमेशा ये याद रखना, जो कंटेंट वाली साइड है ना 3 फंडामेंटल्स पिलर्स में से, वो कंटेंट वाली साइड हमेशा लिमिटेड रखना. हमेशा कीप योर रिसोर्सेस लिमिटेड. रिपीटेटिव रीडिंग करो, ठीक है. और आंसर राइटिंग में हमेशा ना लैंग्वेज के बारे में सोचो. एवरीबडी टॉक्स अबाउट द लैंग्वेज, इवन आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज. सो एनीवन कैन आस्क कि सर लैंग्वेज क्या है ना, लैंग्वेज क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं. सो लैंग्वेज इज द कीवर्ड्स और की टर्म्स विच यू नीड टू यूज while writing the answer of that particular topic. लेट्स से आर्ट एंड कल्चर लिख रहे हो या फिर सोसाइटी लिख रहे हो. सोसाइटी में अगर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, आप होमोजिनाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन और रिवाइवल ऑफ द कल्चर, और उसमें भी मैकडोनलाइजेशन, कोकोलाइजेशन. सो दीज आर सम कीवर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग द आंसर. तो ये कीवर्ड क्या कर देना, सम अप करते हैं 2-3 लाइन्स. Yes. So that is the three fundamental figure. That are the 3 fundamental figures, pillars. Then third, which is very important thing, that is approach. जो हमारे सेशन का एक important एस्पेक्ट है कि अप्रोच क्या होता है. तो अप्रोच दो होते हैं. वन इज रीडिंग में, प्रिपरेशन में, एंड सेकेंड वन इज परफॉर्मेंस में. फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन में, सेकेंड वन इज परफॉर्मेंस में. तो हमेशा याद रखना कि सिर्फ प्रिपरेशन की वजह से हम क्लियर नहीं कर पाएंगे दिस एग्जाम. वी हैव टू फॉलो ऑनेस्ट एफर्ट्स एंड राइट एफर्ट्स इन दी परफॉर्मेंस साइड ऑल्सो. ओके, सो परफॉर्मेंस साइड्स मीन्स व्हाट, कि मेकिंग माइक्रो नोट्स, making frameworks and templates, then making writing the answers, practicing them properly, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आपका एक बेस मसल मेमोरी बन जाएगी. सो विद इन दैट प्रेशर, जब आपके ऊपर प्रेशर होगा GS1, GS2, GS3, GS4, तब भी आप एक एवरेज, अबो एवरेज आंसर लिख पाओगे. अगर आपको मैंने अभी आंसर लिखने के लिए दिया ना, तो यू विल राइट रियली गुड आंसर्स. और हमेशा ना लोग बोलते हैं, जैसे मैं हमेशा, इस सर को भी चीज पता है और हमेशा मैं लोगों को भी बताता हूं, देर इज नो सच कॉन्सेप्ट लाइक अ मॉडल और आइडियल आंसर्स. आंसर्स प्रैक्टिकली होते हैं. प्रैक्टिकल आंसर्स मीन्स व्हाट, ऐसा कंटेंट, ऐसा आंसर जो रिफ्लेक्ट कर पाओ आप वो क्लासरूम में, इतनी अंडर स्ट्रेस सिचुएशन में, विद इन 6 मिनट्स. तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल आंसर. एंड गो फॉर दैट. Don't run behind ideal answers or model answers. You cannot dump 10 points in the same answer. What you have to do, you have to write
important 6 points or 5 points in your answer. So do not try to recall all these 10 points. जो इंपॉर्टेंट वाले 5-6 ना वो याद रखने हैं, एंड दैट इज द प्रैक्टिकल आंसर. कोई भी बंदा, कोई भी टॉपर हो, कोई भी हो, ऑल इंडिया रैंक 1 भले ही हो, वो भी रिकॉल नहीं कर पाएगा वो 10 पॉइंट्स. बट हम क्या करते हैं ना, वी रन बिहाइंड दैट स्ट्रेटेजी और वहीं पे गलत जाते हैं. सो हमें क्या करना है, 5-6 पॉइंट्स याद रखने हैं हर एक चीज के जो इंपॉर्टेंट हो. ठीक है. सो दैट इज द केस. और GS1, GS2, GS3, GS4, हर एक जीएस में ना डिफरेंट सब टॉपिक्स है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, विच रिक्वायर्स डिफरेंट अप्रोच. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सिर्फ GS1 के लिए एक अप्रोच नहीं होगा, GS1 के विद इन जो सब टॉपिक्स है उनके लिए डिफरेंट अप्रोच होगा. ओके. यस. सो दैट्स हाउ आई succeeded in getting 420 plus from 360s. So if anyone wants to ask anything, you can. यस. पहले ना वॉइस वाले डाउट्स होंगे जो जो बोल रहे ना, उन वो वाले. देन आई विल टेक लिस्ट वाले डाउट्स जो कि हेलो लिखे सर. हुए हैं. हाँ, कौन बोल रहा है? सर उमेश. हाय सर. ओके उमेश. यस. कैन यू कीप योर वीडियो ऑन उमेश, बिकॉज आई कांट सर सी यू. not in that condition. Can I continue in voice? No, let me take questions from those who have put their videos on, then I'll Okay sir. come Okay to sir. you, Okay sir. because that was the protocol and Okay sir. Sure. rule which we made in the first place. Okay. Yeah, Bish, you can ask me the question. मॉर्निंग सर. सर Yeah, आपने morning. अभी एडवाइस दिया था इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल आंसर वर्सेस आइडियल आंसर. अपने टाइम्स Yes. इसमें क्या होता है कि आप एक बैलेंस नहीं देख पाते. कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने बहुत पॉइंट जनरेशंस किए हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट्स है, बट उनको 10-12 रखे हुए हैं 10 मार्कर या 15 मार्कर्स के लिए. और क्वालिटी आंसर्स कुछ टॉपर्स हैं जो सिर्फ 5 या 6 पॉइंट्स में ही समराइज कर देते हैं बॉडी के अंदर. Yes. नोट बिल्डिंग करते हैं या फिर टेस्ट सीरीज भी लिखते हैं हेडिंग टुवर्ड्स में. Yes. उस केस में हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस कि यू नो वेदर आई हैव रिटन द करेक्ट Yes. नंबर along with quality? Yes. So let me give you let me explain this कि कुछ कुछ सवाल ऐसे है ना जिसके बहुत लिमिटेड पॉइंट्स है. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ओशन करंट्स का एग्जांपल ले लिया, उसके इम्प्लीकेशंस हम ऑन दी 3 और 4 टाइप्स से ज्यादा जा नहीं सकते. ठीक है. इन द फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन उसमें हम जा नहीं सकते. अगर उसको स्ट्रेच करेंगे ना, सो दैट विल गिव यू नेगेटिव इंप्रेशन. ओके. अगर फिर भी लिख ही रहे हो. ओके. सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड वन इज, क्या है ना, कुछ कुछ लोगों को वो 10 to 12 पॉइंट्स याद रखने की हैबिट हो जाती है, सबको नहीं होती. मैं सच बोल रहा हूं. ये प्रिपरेशन ना थोड़ा आसान बनाओ, ना कि उसको कॉम्प्लेक्स बनाओ. और रादर देन राइटिंग द जनरलाइज पॉइंट्स, आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन राइटिंग द क्वालिटी पॉइंट्स. क्योंकि क्या है ना, ओके. सो ट्राई टू फॉलो दैट स्ट्रेटेजी. और जिसमें आपको क्वालिटी पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, की टर्म्स नहीं मिल रहे हैं, देन यू गो जनरल. ओके. बट टिल देन यू मस्ट फॉलो द क्वालिटी वाला पॉइंट्स. और ये हमेशा याद रखना कि फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन में तो ब्लंडर करना ही नहीं है, बिल्कुल. स्ट्रेच किए ही जा रहे हो, नहीं आ रहा तब भी लिखे जा रहे हो, नहीं करना है. नहीं आ रहा ना भाई, एक पेज लिखो, दूसरे पेज पे काट मारो, जस्ट खत्म करो उसको. उसमें 10 मिनट लगा रहे हो जिसमें कुछ नहीं आ रहा. वॉट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन द रॉन्ग डायरेक्शन. सो डोंट वेस्ट दैट. ओके. हाँ. Hello, sir. Sorry Nisha, you have put your video on right now. Just I need to take the questions from those who have already put their video on, then I'll come to you. Okay Nisha? Okay. Yeah, sure. Hello, Yeah sir. Imani. Good morning.
Good morning, sir. Sir, I have like lot of confusion on note making, how I should make notes for GS. So, is it like should I first make small notes of, let's say I read a topic called, let's say, societal social issues on vulnerable sections, let's say women, children, elderly. So Yes. first, do I make small notes of 2-3 pages on each, and then I make micro notes of the small notes, or should I directly make micro notes? हाँ, सो ये याद रखना कि नोट्स बनाने भी हो तो थर्ड रीडिंग के बाद बनाने हैं हमें, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड रीडिंग के बाद नहीं बनाने। और वो भी नोट्स ऐसे बनाने हैं जैसे सिंगल पेज पे हम वो वल्नरेबल सेक्शन खत्म कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वुमेन, तो वुमेन का मैं बताता हूं कैसे एक डायमेंशन होगा नोट्स मेकिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल, वुमेन का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो उसमें आएगा, डेटा आएगा कि इतना परसेंट वुमेन है, ठीक है। सेकंड आएगा कि क्या इश्यूज वो फेस कर रहे हैं। वो इश्यूज मल्टी डायमेंशनल हो गए, समझ में आ रहा है, वर्टिकल्स और Yes, sir. हॉरिजॉन्टल में हो गए कि एज वाइज वुमेन फेस कर रही है, सेक्टर वाइज वुमेन इश्यूज फेस कर रही है, समझ में आ रहा है। सो वो इश्यूज हो गए। थर्ड वन इज गवर्नमेंट मेजर्स। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। अब गवर्नमेंट मेजर्स में कौन से होंगे, तो उसमें लीगल मेजर्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होगा, देन स्कीम्स एंड पॉलिसीज, ओके, देन एक्ट्स। मतलब लीगल में ही एक्ट्स आएंगे बेसिकली, ठीक है। और चौथी चीज होगी वे फॉरवर्ड, कि क्या करना चाहिए। और उस वे फॉरवर्ड में भी यू नीड टू गो बाय द फेमस कमिटीज विच दे हैव रिकमेंडेड अबाउट इंप्रूविंग द सिचुएशन ऑफ वुमेन। समझ में आ रहा है। तो वो हमेशा याद रखना। तो इन योर आंसर यू नीड टू बी सीन एज लाइक सब्सटैंशिएटिंग योर पॉइंट्स। वो सब्सटैंशिएट और ऑब्जेक्टिविटी कैसे दिखेगी, दैट यू आर गिविंग एविडेंसेस कि सर NFHS 5 is saying this. Got your point? Got my point? And way forward में this committee has recommended this about the women, about improving the situation in particular sector, whatever the sector, whatever the sub dimension they are giving dimensions on. So got my point. So इन 4 dimensions पे हमारे notes बनाने हैं। अब ये replicate हो गए सेम ओल्ड एज के लिए, ट्राइबल के लिए, चिल्ड्रन के लिए, यूथ के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, गॉट, एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए, एंड पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए, एंड सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये पूरा वल्नरेबल सेक्शंस कवर हो जाएगा इस 4 डायमेंशंस में, ओके। सो दैट्स हाउ यू Sir, नीड टू मेक नोट्स। sir, let's say there is one topic, so I should read it from NCERT and standard books both, and after that I should make notes on it. And यस, then योर value नोट्स शुड addition. बी योर नोट्स शुड बी इंक्लूसिव। दैट्स हाउ, कि आपने 3-4 रिसोर्सेज से वो नोट्स बनाया हो, सो दैट यू देर इज नो नीड टू गो अगेन फॉर दोज रिसोर्सेज, ओके। बाद में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर पढ़ रहे हो ना तो आराम के साथ पढ़ो, नोट्स मेकिंग प्रॉपर करो, जिससे सिर्फ वैल्यू एडिशन करना है आपको। कैसे? सिर्फ टॉपर्स कॉपीज एंड करंट अफेयर्स, दैट्स इट। उसके बाद आपको रिसोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। Sir, just last question. Sir, do you यस, suggest note making from newspaper on daily basis, or like how we should go on current affairs note making? यस। सो यस, करंट अफेयर्स, जब जैसे मैंने बोला कि इफ यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर विद इन 30 to 35 मिनट्स, सो विद इन दोज 35 मिनट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी न्यूज कहाँ पे डाली जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको सिलेबस पता होने चाहिए ठीक तरीके से, ओके। सो यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसे ऐसे नोट्स हम बना सकते हैं। तो ऑन डेली बेसिस अगर आपको एक दो न्यूज भी मिल सकती है ना, वो किसी GS1 या सोसाइटी या फिर इथिक्स में किसी टॉपिक में डालना है, तो हमेशा ये याद रखना, हमेशा देयर शुड बी 2 कॉलम्स। एक में वो न्यूज या केस स्टडी डाली है, और दूसरे कॉलम में आप कहाँ पे यूज करोगे। GS1 के लिए अगर 100 पेजेस की नोटबुक है, अलॉट 25 पेजेस टू ईच पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4, ओके। तो 2 कॉलम बनाओ। अगर GS1 की न्यूज है, तुम्हें पता है ये GS1 में यूज कर सकती हूँ, तो वो केस स्टडी या न्यूज लिखो, उसका ब्रीफ लिखो 1-2 लाइन में, क्या है वो। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे एक्सीडेंट जो हुआ था ना मुंबई का, वो बताता हूं मैं। तो आप उसको लिखा कि इतने इतने डेथ्स हो गए थे, इसकी वजह से वो हो गया था। आगे वाले कॉलम में उसको एरो करके लिखो कि ये मैं कहाँ यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
उससे क्या हो जाएगा ना, वो न्यूज आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं, उस न्यूज कहाँ पे यूज करना है वो भी आपको समझ में आएगा। ओके। जैसे वो Got it, sir. ओडिशा वाला जो सिविल सर्वेंट है वो पकड़ा गया, तो उसको कहाँ पे डाल सकते हो आप? अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, प्रोबिटी इन दी गवर्नेंस, तो उसके आगे लिखना कि इसमें हम ये डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ। ओके, सो दैट्स हाउ Oh, यू नीड टू मेक नोट्स। या okay, sir. Thank you so much. या हिमानी, इट्स माय प्लेजर। Hello, Hello, sir. sir. या उमेश। Hello. Sir, okay, sir. Take her out first. No problem. या एकता, गो अहेड। कंटेंट PYQ अनालिसिस प्लस आन्सर रायटिंग यस, या संपूर्ण प्रोसेससाठी सर आयडियली हे सर्व मेन्स GS प्लस ऑप्शनल नाही करायचे. सेम तर या स्ट्रॅटेजी संपूर्ण वापरायची। प्रोसेसला तर या संपूर्ण प्रोसेसला आयडियली किती वेळ दिला पाहिजे पूर्ण प्रोसेस लुक मध्ये फर्स्ट टाइम जर लुक करत असेल तर? yes, so I think till December you need to practice all these three pillars. ओके, सो जिसमें आपके नोट्स रेडीमेड होने चाहिए। आप प्रीलिम्स के बाद नोट्स नहीं बना सकते, समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू मेक योर नोट्स, माइक्रो नोट्स, टिल डिसम्बर ओनली। ओके, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी तभी करनी है। यू हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग ऑन अ ग्रेजुअल बेसिस। आप फर्स्ट में ही सेक्शनल फुल लेंथ नहीं लिख सकते, तो उसके लिए ये देखना कि आप 1 घंटे में 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे एसओएमपी का एक पैटर्न है, स्ट्रैटेजी है 357 वाली, तो 1 1.5 महीना वो ना 3 क्वेश्चंस पर आवर लिख के लेते हैं। जैसे 20 मिनट्स आप अलॉट कर सकते हो एक क्वेश्चन के लिए। उससे क्या होगा, यू विल इंप्रूव योर क्वालिटी। तो और एक सेट हो जाएगा बेस 1.5 महीना प्रैक्टिस करने के बाद कि हाँ ऐसे क्वालिटी करनी है, ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। तो आप ना अलॉट कर सकते हो 10 to 12 मिनट्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड 8 मिनट्स टू राइट दैट आंसर। ओके, तो 1 घंटे में 3 ही सवाल लिखने हैं 1 2 महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद 5 सवाल लिखना स्टार्ट कर देना, उसके बाद 7 सवाल, एंड देन स्टार्ट राइटिंग द फुल लेंथ। ओके, एंड ऑल दीज थिंग्स, सो यू नीड टू गो ग्रेजुअली इन आंसर राइटिंग। ओके, यस। Yes, sir. Okay, sir. Can I ask now? लेट मी आस्क, इज एनीबडी फ्रॉम जो भी पहले थे? हेलो सर। Yes. या या निशा? सर मुझे ये पूछना था, हाउ वी गेट द एक्चुअल डिमांड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो समझ में नहीं आता ये एक्चुअल में डिमांड कर क्या रहा है। अगर आप अच्छे से सिलेबस कवर किए हो, कंटेंट पढ़ा हो ना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ओके। ऑल। सेकंड वन इज यू नीड टू रीड क्वेश्चंस बार बार रिपीटेटिवली एंड ट्राई टू डीकंस्ट्रक्ट। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे ना, तो उसको थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, पार्ट्स में, सब पार्ट्स में, फिर एक एक कीवर्ड उठा लो उसमें से, देन उसको सवाल पूछो कि एक्चुअली सवाल उसको पूछा गया है या उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में पूछा गया है, तो इनपुट वाला है या फिर आउटपुट वाला है। समझ में आ रहा है? सो फॉर दैट यस। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू बी क्विक इन दी अंडरस्टैंडिंग द डिमांड। लेकिन वो चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, वो चीज ऐसे ओवरनाइट नहीं आएगी। ओके, हाँ। और दूसरी चीज, टॉपर्स कॉपीज अच्छे से पढ़ोगे ना, तो विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये डिमांड थी क्वेश्चन की और ये टॉपर ने ये चीज एड्रेस की है। गॉट इट? ओके सर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? मतलब अगर मैं ऑप्शन को अपना सही से टाइम दे देती हूँ तो फिर वो जीएस को पता नहीं कैसे वो कम टाइम हो ही जाता है, पता भी So नहीं you are चलता। not, yes, you are not doing proper planning before starting the preparation. That is the issue. Let me explain. पहले ना आप एक मंथली ब्रॉडर टारगेट्स बनाइए। ओके, कि यार इस ओके। महीने में मेरा ये टारगेट है कि मेरे 2 जीएस पेपर खत्म करने हैं और ऑप्शनल में से पेपर 1 का पार्ट ये खत्म करना है। ठीक है, ये हो गई ब्रॉडर प्लानिंग। आपको अलॉट करना है 50-50 या 60-40 अलोंग विथ, मतलब ये चीज 60-40 वाली डिपेंड होगी कि आप किसमें कम हो और किसमें ज्यादा हो। जिसमें कम हो उसके लिए 60% टाइम दे सकते हो, और जो आप स्ट्रांग हो उसमें 40% दे दो, या फिर एक कर दो 50-50 डिवाइड कर लो टाइम अपना। ठीक हाँ, है, देन 50-50 सेट, बैठेगा। हाँ, देन सेट
15 डेज टारगेट। अब 15 डेज टारगेट में फिर वीकली टारगेट सेट करो, वीकली में फिर डेली टारगेट सेट करो, ऐसे प्लानिंग बनाओ। और वो स्लॉट वाइज लिखो, डेली टारगेट्स भी ना स्लॉट वाइज लिखो कि कितने स्लॉट्स में आप बैठ रहे हो, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4। और वो आगे आपके लिखा होना चाहिए कि इस वीक में मेरे ये टारगेट्स है। और उसमें थोड़ा बफर टाइम रखना, जिसकी वजह से अगर आप कोई एक स्लॉट या फिर कोई एक दिन का टारगेट भी कंप्लीट नहीं कर पाए ना, तो एक दिन अलॉट कर देना। तो मेक टाइम टेबल फॉर 6 days पर वीक, और एक डे बफर रखना है हमें, ठीक है। ओके। देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मार्क कंप्लीटेड व्हेनेवर यू आर कंप्लीटिंग द टारगेट फ्रॉम स्लॉट 1। स्लॉट 1 का हो गया, देन टेक स्लॉट 2 का टारगेट, स्लॉट 2 का कंप्लीट करो, स्लॉट 3 का करो, स्लॉट 4 का करो। ऐसे डिसिप्लिन का हैबिट लगा लो अपने आप को कि हम डेली ओके। टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं, देन वीकली कर रहे हैं, देन 15 डेज के कर रहे हैं, मंथली। देन मंथली कर रहे हैं। Then you will understand कि you are completing the targets which you have set for the month. Okay? इससे आपका जी। सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। और मैं आपको चीज बताता हूं कि 6 मंथ जो है ना आने वाले दिसंबर तक के, वो सफिशियंट है मेंस के प्रिपरेशन के लिए, मोर देन सफिशियंट है इफ यू प्लान प्रॉपर। ओके, या Sir, या can I उमेश, ask you? या उमेश, गो अहेड। Okay, sir, I had the same doubt as Himani, but let me extend it further. सर, नोट्स जो सब लोग बोलते हैं कि अपना जो नोट्स बनाना है वो क्वालिटी और इंक्लूसिव नोट्स होना चाहिए, उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें होनी चाहिए। तो सर, आई वांट टू आस्क कि जो शॉर्ट नोट्स मैं टॉपर्स के देखता हूँ, 1 पेजर टाइप के होते हैं, उसमें दे हैव नॉट रिटन एवरीथिंग। तो शुड वी राइट ओनली दोज थिंग्स दैट वी कैन नॉट रिमेम्बर यूजुअली, और वी शुड राइट ईच एंड एवरी पॉइंट इन कीवर्ड्स एटलीस्ट? और गिवन दैट सर, मैं मेरा लगभग सारी चीजें मैंने पढ़ लिया है, कुछ आंसर भी लिखे हैं, बट ओनली प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट हैव माय नोट्स। नहीं, ये चीज ध्यान में रखना कि नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, पहले चीज, ठीक है। मेंस के लिए, प्रीलिम्स आप हर एक चीज के लिए नोट्स नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मेंस के लिए आपको हर एक चीज के लिए नोट्स बनाने जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे आपने पूछा कि सब पॉइंट्स उसमें आने चाहिए या your notes must contain the keywords and key terms, okay, along with the data, ठीक है। ओके। या फिर कोई रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस, ये होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल्स ये ना आपके नोट में होनी चाहिए। और ये चीज जैसे आपने पूछा ना कि सर उसमें सब इंक्लूसिव, बिल्कुल। टॉपर्स क्या करते हैं, या फिर मैं जो सिलेक्ट हुआ हूं, तो मेरे नोट्स कैसे होंगे, तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, एक बेस बुक या फिर नोट्स रीड करूंगा, ठीक है, एक दो रिसोर्सेज से। और जो भी नोट्स निकालने ना मुझे, मैं वही निकालूंगा जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ मेरे आंसर्स में, जो नहीं आ रहा है, जो आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वो करना है हमें, ओके सर, या उमेश, गॉट इट सर, थैंक यू सर, या थैंक यू फॉर या सो मच एफर्ट सर। या या इट्स माय प्लेजर यार उमेश। काजल, यस, निशा, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? या या काजल, अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी सर। या काजल, सर माय क्वेश्चन इज कि अभी मेरा ऑप्शनल नहीं तैयार है एंड जीएस मेरा बहुत अच्छे से नहीं तैयार है, बट आई एम डूइंग आंसर राइटिंग विद सर। बट द प्रॉब्लम व्हाट आई एम फेसिंग इज कि मेरा स्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा है, मुझे कंटेंट मतलब मे बी आई एम नॉट दैट मच इनरिच्ड विद कंटेंट, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मेरे से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है आंसर राइटिंग, तो हाउ शुड ब्रेक दिस बैरियर? हाँ, तो इसके लिए एक काम करो कि तुम्हारा ऑप्शनल तैयार नहीं है, जीएस भी इतनी चीज अच्छे से तैयार नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग योर टाइम टेबल। लिसन टू दिस, कि जो आपने टारगेट्स बनाए हैं या फिर टारगेट्स बनाओगे, तो वो फॉलो करना जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार नहीं आ रहा, आज मेरा मन नहीं है, आज नहीं होगा, ऐसा वैसा नहीं। आपको कैसा भी आपका मूड हो, कैसा भी आप फील कर रहे हो, यू हैव टू कंप्लीट योर टारगेट्स एनी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड वन इज आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस कैसे करना है। तो हमेशा ये याद रखना कि पीवाईक्यू से करना है। सेकेंड चीज, किसी क्लास के पास से स्टार्ट मत करो, इनिशिएट मत करो ऐसे विद इन ये। अगर करना है तो किसी की मेंटरशिप प्रॉपर ले लो कि वो आपको गाइड करेगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू से कैसे करोगे, एक टॉपिक पढ़ लो,
ठीक है, उस टॉपिक पे पीवाईक्यूज ले लो, एक ही ले लो, ठीक है। जब तक आप प्रॉपर आंसर उसका नहीं लिख पा रहे ना, तब तक ट्राई करो। जैसे स्ट्रक्चरिंग बन रहा है, डिमांड बन रहा है, ठीक है, वो कर लो। दूसरी चीज, उसी टॉपिक पे अगर टॉपर्स की कोई कॉपी है, उसमें वो सवाल पूछा गया है, तो वो सवाल उसका आंसर बिना पढ़े टॉपर्स कॉपी से आप वो ट्राई करो, एंड देन ट्राई टू मैच कि टॉपर ने कैसे डिमांड उसकी फुलफिल की है और मेरे से क्या मिस हो रहा है। और ऐसे भी बहुत बार होगा कि यू विल थिंक कि यार ये 4 पॉइंट तो इसने भी नहीं लिखे, ठीक है, तो वो चीज अच्छी है, ठीक है। तो वो करनी है, तो ये 3 चीजें करनी है आपको। पहले तो टाइम टेबल आपका बना लो आप प्रॉपरली, जिससे आप टारगेट्स कंप्लीट कर पा रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप पीवाईक्यू से स्टार्ट करो या फिर किसी की मेंटरशिप ले लो जो आपको गाइड करेगा प्रॉपरली इन आंसर राइटिंग। और तीसरी चीज है, टॉपर्स कॉपी से आप मैच कर लो अपने आंसर्स विदाउट रीडिंग दैट आंसर। जिस टॉपिक पे आपने पढ़ा है उस टॉपिक का आंसर लिख लो, वो टॉपर्स कॉपीज का सवाल देख के, देन read both your answer as well as topper's answer, and then find out what is missing in your answer. Okay, so that will help you. Sir, I did that And before. yeah, Kajal, just let me add one thing. Content has limitation. Content आप कितना भी पढ़ लो, आपको ये लगेगा कि I am not ready for the answer writing. So don't hesitate and don't let that mindset blocking you or stopping you from practicing the answer writing. ये टॉपर्स का भी नहीं होता कभी कंटेंट कंप्लीशन वाला थिंग, तो वो सेंस ऑफ कंप्लीशन है ना, नहीं आएगा कंटेंट के बारे में। यू विल ऑलवेज फील कि कुछ ना कुछ तो मिस है। ओके, सर वन थिंग या आई डिड बिफोर, लाइक कि मैंने पहले पीवाईक्यूज की एक बुक ली हुई थी, देन उसमें आंसर्स भी थे, एंड आई फॉलो सम टॉप मतलब सीनियर्स की कुछ कॉपीज वगैरह देखी। तो एक ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब पहले उनके आंसर्स देखते हैं ना, तो जब हम अपने खुद के आंसर्स लिखते हैं ना, तो वो एक सेट पैटर्न उनका वाला फॉलो होने लगता है धीरे धीरे। देन आई रियलाइज कि अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा, अभी तो ये पीवाईक्यूज है, नए क्वेश्चन में हाउ विल आई जनरेट माय ओन, कि अगर मैं इसी तरह से फॉलो करती रही। हाँ, पहली चीज ये ध्यान रखना, जो पीवाईक्यू सॉल्व वाले देख रहे हो ना किसी क्लास के, तो वो बनाए एक मस्त रूम में एसी में बैठ के कॉपी पेस्ट करके, तो वो मॉडल आंसर नहीं हो सकते। मैं हमेशा जो बोलता हूँ ना, प्रैक्टिकल आंसर के पीछे दौड़ो यार, मॉडल आंसर के पीछे मत दौड़ो। जस्ट फॉलो दोज आंसर्स पीवाईक्यूज वाले जो भी किसी क्लास ने दिए, वो फॉर द अप्रोच, कि क्या अप्रोच उन्होंने फॉलो किया है, क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए, एंड द डायरेक्शन, कि मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, थिंकिंग वाली, थॉट प्रोसेस वाली। सो उसके लिए उसका फिर यूज करना है बस। अब सेकेंड थिंग, जो तुमने तुमने बोला ना कि टॉपर्स कॉपीज वाली स्ट्रैटेजी, यस, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ना कि ट्राई टू डेवलप योर यूनिक स्ट्रैटेजी। जो आपकी यूनिकनेस है ना, वो ढूंढो कि मेरी स्ट्रेंथ्स किस में है। मेरी स्ट्रेंथ्स मैप्स में है, मैप्स में है, जो मैं बहुत सही तरीके से निकालता हूं और उसमें बहुत अच्छी तरह से पॉइंट दिखाता हूं। मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रेंथ इसमें है कि मैं अच्छे से फ्लो चार्ट्स बना सकता हूं विद द कीवर्ड्स। तो वो ट्राई टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट होगी, टू गेट अ गुड मेंटर जो आपके आंसर्स इवेल्युएट कर पाए और वो सही कर पाए। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें मैं, कि क्या था ना, मैं किसी पिछले 1-2 साल पहले ना एक क्लास में, दिल्ली में बेस्ट क्लास है वो, उस क्लास में ना आंसर इवैल्यूएशन का काम कर रहा था पीएसआर के लिए, ठीक है, ऑप्शनल के लिए। तो वो काम करने के टाइम ना, पहले 1-2 दिन ये हुआ कि मैंने इवैल्यूएट करके आंसर दे दिए और कुछ सजेशंस देता था मैं उस आंसर इवैल्यूएशन में। तो उनके पास से मुझे ये मैसेज आया और कॉल आया कि यू आर नॉट इवैल्यूएटिंग द आंसर प्रॉपरली, यू आर नॉट टेलिंग दैट स्टूडेंट व्हाट इज द मिसिंग। तो मैंने उन्हें ये चीज कही कि सर, वो बिगिनर है, अगर मैं उसको बोल दूंगा ना कि ये पॉइंट्स आप में मिस है, ये पॉइंट्स चाहिए आपको टॉपर बनने में, तो वो तो इतना डिमोरलाइज हो जाएगा और सोच पाएगा कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा। वो फर्स्ट स्टेयरकेस की फर्स्ट स्टेप पे है, और मैं उसको बोल दूं कि 150 वाली स्टेयरकेस पे तेरा कमरा है, तो उसको मैं बोल दूं यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना, नहीं, मेरी फर्स्ट स्टेप क्या है, उसको एक फ्लोर तो चढ़ा लूं मैं, फिर उसके बाद सेकंड चढ़ा लूंगा, फिर थर्ड। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। बिगिनर को मैं बताऊंगा ना सब चीज है, डंप कर दूंगा, तो उसकी तो कैपेसिटी इतनी है लेने की, और मैं इतने से उसको दे रहा हूं, तो ही और शी कैनॉट होल्ड इट। सो इट्स माई जॉब
and it's our job to give what can be absorbed or grasped by the student, और वो हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, समझ में आ रहा है? So that can be done through a third person or third party like SOMP or any other proper mentorship program. Okay? या काजल या भूमिका गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून। सर मतलब मैंने अभी अपना ऑप्शनल रिसेंटली स्टार्ट किया है एंड मतलब ऑलमोस्ट मेरा पेपर 1 आधे से ज्यादा कवर हो गया। मैं PYQs के आंसर लिख लेती, मतलब जो उस टॉपिक से रिलेटेड है वो लिखने की कोशिश करती, बट ये होता जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड वगैरह से चेक कराती तो वो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स या कुछ मतलब दे देते, तो मुझे आंसर मतलब आंसर एवेल्यूएशन का कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए अपने आंसर्स के लिए। अभी रिसेंटली मैंने 20-25 आंसर्स ही लिखे हैं अभी, तो कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे लगता है ना कि जो भी आपको वैल्यू एडिशन करवा रहा है या फिर इवेल्युएट करवा रहा है ना, वो प्रॉपर पर्सन हो, जो सीरियसली जेन्युइन हो, अच्छा हो, जो आपके सिलेक्शन के बारे में सोच रहा हो, ना कि उसको कितना पता है वो नहीं होना चाहिए। जो ईगो क्लैशेस होते हैं ना, मेरे को कितना पता है लिख लूंगा मैं, ना वो डिमांड फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है वो देखो तुम्हारा आंसर, और नहीं कर रहा है तो किस बेसिस पे नहीं कर रहा है वो लिखो। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस वैसी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि तुमको लग रहा है कि मेरे आंसर में वैल्यू एडिशन नहीं है, तो ये ध्यान में रखो कि क्या है ना, तुम फर्स्ट रीडिंग करके जब आंसर राइटिंग के लिए बैठोगे तो बहुत सारी चीजें मिस होने वाली है, लेकिन यू शुड कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग। यू शुड नॉट स्टॉप फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द आंसर राइटिंग, बिकॉज ये जो पॉइंट्स वो दे रहे हैं या फिर कोई भी क्लास देगा या फिर SOMP देगा, कोई भी देगा, तो उसका ना ग्रेजुअली इंपैक्ट और इंप्रूवमेंट होगा, एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप कोई क्लास लगा रहे हो तो ओवरनाइट उसका पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिखेगा, उसकी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करोगे ना, देन यू कैन सी द इंप्रूवमेंट्स। ओके सर, यस, बेस्ट। थैंक यू सर। या यस सर। सर या जब PYQ एनालिसिस की बात की थी उसी से रिलेटेड था कि आप जब PYQ एनालिसिस करते थे मेंस के लिए स्पेसिफिकली, तो फ्रेमवर्क क्या रहता था? एक होता है ऐसा कि हम टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये टॉपिक्स को पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, बट आगे का प्रोसेस क्या रहता है PYQ एनालिसिस? मतलब डेप्थ कितना प्रिपेयर करना है उस टॉपिक को लेके, या उस टॉपिक का रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब आप कैसे देखते थे? यस, तो अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि इंटरनल सिक्योरिटी का कोई सवाल पूछा गया है नक्सलिज्म पे, ठीक है, और सवाल ये था कि उसके इम्प्लीकेशंस पे था, जो नक्सलिज्म है ना उसका इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 आइडेंटिफाइड सब थीम्स की, एक था नक्सलिज्म, दूसरा थे इम्प्लीकेशंस। मैंने क्या किया, नक्सलिज्म जैसे ही इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन से है, टेररिज्म है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, तो वो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। अब ये हो गई वर्टिकल वाला थिंग। अब हॉरिजॉन्टल में क्या करूंगा मैं, इम्प्लीकेशंस के बारे में पूछा है तो कॉजेस भी करने हैं मुझे, ठीक है, उसका अभी स्टेटस क्या है वो भी करना है, देन गवर्नमेंट मेजर्स क्या लिए गए उस पे वो भी करना है, एंड वे फॉरवर्ड क्या होगा उसका वो भी करना है। सो दैट्स हाउ आई यूज टू कवर ऑल 360 डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर थीम एंड सब थीम। ओके, एंड देन आई ट्राई टू फाइंड आउट द कंटेंट इन दैट, कि मुझे अब दिशा मिल गई है कंटेंट बिल्ड करने की, देन आई यूज टू डू दैट। यस इमानी। हेलो सर। या इमानी। सर मैंने 2 मेंस लिखे हुए हैं और यस 375 पे ही GS का स्कोर रहता है। सो माय क्वेश्चन वाज कि आपने जैसा बताया कि हर सब्जेक्ट का, हर GS के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका भी अप्रोच अलग रहता है, तो बिल्कुल। प्लीज आप उसको थोड़ा इलेबोरेट करके बता पाएंगे? जैसे अभी मैं GS2 प्रिपेयर कर रही हूँ, पॉलिटी और Yes. गवर्नेंस है, तो उन दोनों का अप्रोच अलग कैसे होगा? जैसे पॉलिटी है ना, तो पॉलिटी के 3-4 डायमेंशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, जैसे आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, दूसरी चीज होगी कि क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, तो काउंटर ऑब्जर्वेशंस एंड सपोर्टिंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, वो किससे हो गए, सुप्रीम कोर्ट से होंगे, ठीक है,
या फिर किसी कमेटी से होंगे, या फिर किसी रिपोर्ट से होंगे, उसकी फाइंडिंग्स होगी। समझ में आ रहा है? और तीसरा ओके होगा, या एंड तीसरा होगा द कंटेंट, मतलब उसमें जो पॉइंट्स है ना तो वो पॉइंट्स जो किसी एक्सपर्ट्स ने लिखे हो या फिर कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, ठीक है, वैसे वाले। तो इन 3 डायमेंशंस पे हमें काम करना है पॉलिटी के लिए, ठीक है। अब GS1 की बात करोगे तो ज्योग्राफी, सोसाइटी, मॉडर्न हिस्ट्री। तो लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में 3 चीजों पे काम करना है। एक है ईयर, दूसरा है इवेंट्स, और तीसरा है पर्सनालिटीज। ओके, तो इन 3 चीजों पे काम करना है। आप 3 कॉलम्स बनाओगे, फर्स्ट में आएगा इवेंट और उसका ईयर आएगा, ठीक है। देन दूसरा कॉलम होगा उसके कॉजेस, ठीक है। तीसरा कॉलम, एक्चुअली 4 कॉलम बनाने, तीसरा कॉलम होगा उसके इम्प्लीकेशंस, कि क्या आउटकम हुआ उस इवेंट का, और चौथा होगा पर्सनालिटीज इन्वॉल्व। गॉट इट? सो इन 3 डायमेंशंस पे होगा। तो ये अप्रोच प्रिपरेशन का। सोसाइटी में जाओगे तो सोसाइटी में स्ट्रक्चर एंड कल्चर, इसमें आओगे। कल्चर मतलब हमारा इंडियन कल्चर, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो स्ट्रक्चर में 2 आते हैं, सेक्शन एंड इंस्टीट्यूशंस। सेक्शंस में क्या आएगा? वुमेन आएगा, ठीक है। सही है, नॉट ऑडिबल। या लास्ट का या सो इन सेक्शन देयर विल बी वुमेन, ओल्ड एज, जो भी सोसाइटी के सेक्शन है ना, वो आएंगे, ठीक है। यस यस हाँ, और दूसरा दूसरा है इंस्टीट्यूशंस। भाई इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन आएगा? फैमिली, मैरिज, कास्ट, समझ में आ रहा है? रिलीजन, तो ये इंस्टीट्यूशंस आएंगे। चीज का, ओके। यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। या हेलो सर। या या सर या मेरे को निशा, ये पूछना था, प्रीलिम्स के लिए 3 मंथ सफिशिएंट है या इसको और बढ़ाने पर जरूरी है? क्योंकि किस हम चीज के मार्च लिए? प्रीलिम्स के लिए। देखो, प्रीलिम्स के लिए महीने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अच्छी खासी प्रीलिम्स पहले रह चुकी है तुम्हारी, तुमने पहले पहले प्रीलिम्स क्लियर कर चुकी है, तो 3 महीने भी सफिशिएंट है। अगर पहले कभी प्रीलिम्स नहीं दी है तो मेक श्योर दैट यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स। फॉर दैट यू रिक्वायर प्रॉपर टाइमिंग एंड प्रॉपर प्लानिंग, ओके। तो उसके लिए 4 महीने की भी हो सकती है, 5 महीने की भी हो सकती है। अगर दिसंबर तक तुम प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाओगे मेंस के लिए, देन allot next 5 months for the prelims ना। got it? Okay, मतलब मैं क्या ओके कह रहा हूं, if you have prepared well for the mains, then you can allot more time for the prelims, okay? ओके Yes, and it depends on the level of preparation. अगर आपकी प्रिपरेशन कम है तो यस। allot more time, practice more। और अगर प्रीलिम्स के सही लिए है ना निशा, हमारा प्रीलिम्स के लिए एक सेशन होने वाला है, so don't worry. On tomorrow we will ओके be having session for the prelims. So in that session we'll talk about the prelims. ओके। Yeah. Yes, Bhumika. Sir, I want to start the ethics preparation. Can you please suggest some strategy or how we approach the ethics better? Yeah. So try to understand कि ethics पे सवाल कैसे आ रहे हैं। तो सवाल आते हैं theories and case studies, जो कि बहुत दोनों दोनों 50-50% इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमेशा ये याद रखना, जब तक आप थेराटिकल पार्ट अच्छे से नहीं पढ़ोगे, अच्छे से नहीं समझोगे, यू कैन नॉट राइट गुड केस स्टडीज। नॉट नेवर, यू विल नेवर राइट। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे लिखना है। बिकॉज थ्योरी सब यूज करनी है हमें केस स्टडीज में, वो यूज करना है। जैसे केस स्टडी आएगी ना, तो ट्राई टू फाइंड आउट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इन स्टडी। तो वो प्रोबेबिलिटी वाली हो सकती है, इमोशनल इंटेलिजेंस वाली हो सकती है, या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना है। अब थ्योरी में भी 3-4 डायमेंशंस है। एक है पब्लिक सर्विस वाली, दूसरी है जनरल वाली, मतलब उसमें प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ दोनों आएगी। तीसरी है कोड बेस्ड, जो कोर्ट है ना उस पे सवाल आते हैं। तो वो कोड बेस्ड सवालों में ना एक फ्रेमवर्क बना है कि वो कोट किसने किस चीज के लिए लिखा है, उसको कन्वे करो इंट्रो में।
then try to explain that quote in 1 to 2 or 3 lines, then substantiate that point with the examples. तो 3 एग्जांपल्स देने, 3 एक्सप्लेनेशन देने हैं, उसके नीचे 3 एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। अगर पब्लिक सर्विस का सवाल हो तो यू कैन नॉट गिव एग्जांपल ऑफ प्राइवेट लाइफ, दे सकते हो आप? नहीं दे सकते हो आप, लेकिन ये सोचो कि सवाल अगर पब्लिक सर्विस का है, वो कोट talks about the public service, public servant, then you must not write any example from private life. Okay? Yes. And if the Yes. question or the quote is general, then you try to write one personal example, और वो third वाला होना चाहिए, in my Yes. opinion. Okay? So that Sir, is the proper, yeah, Bhumi. सर ओनली क्लासेस या फिर कोई बुक वगैरह भी फॉलो करना चाहिए एथिक्स के लिए? देखो यार, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इथिक्स के लिए एसओएमपी के नोट्स बहुत सही है। मतलब मैंने तो पढ़े हुए एग्जांपल्स भी बहुत सही दिए, और वो भी करोगे और टॉपर्स कॉपी देखोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, कीवर्ड्स के लिए एक लिस्ट प्रॉपरली बनाओगे ना, तो हो जाएगा। जैसे मैंने क्या किया था इथिकल डिलेमास के लिए ना, कि जितने पॉसिबल इथिकल डिलेमास हैं वो मैंने 1-2 पेज पे लिख डाले थे, तो वो मैं बार बार पढ़ता था, सो दैट आई कुड रिकलेक्ट देम ड्यूरिंग राइटिंग द आंसर। जितने भी इथिकल इश्यूज है जो हम लिखते हैं ना केस स्टडीज में, तो उसकी एक लिस्ट बनाई थी। तो वो ट्राई करो यार कि मेरिट्स डीमेरिट्स के लिए प्रॉपर कीवर्ड्स ढूंढो। जैसे प्रोग्रेशन, करियर प्रोग्रेशन, हम क्या लिखते हैं ना, बेनिफिट इन करियर, नो, करियर प्रोग्रेशन यार, फिर प्रोग्रेशन इन करियर इज द राइट वर्ड, ठीक है। दूसरा है कि कोई बोलता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, या फिर थोड़ा एंगर इश्यूज हो जाएंगे मेरिट्स डीमेरिट्स में, तो इससे अच्छा है कि सेल्फ कॉन्शियस clarity or clarity in self conscious. So these kind of keywords you need to make list so that you could save your time. Okay? Yeah, ओके सर, थैंक यू। yeah. Welcome. Hello, sir. Hello. Yeah, Umesh. Sir, can I ask something about optional in general, not as a specific subject in general? Yeah. Because if your optional is PSR, what's your option? So sociology. I will ask the common topic. Yeah. सर जैसे हम पढ़ते हैं थ्योरीज को तो अच्छे से पढ़ लिया, कवर कर लिया, बुक्स या लेक्चर से जहां से भी कवर कर लिया, बट सर क्वेश्चन ना थ्योरी का डायरेक्ट नहीं आता है, इट कम्स इन एप्लीकेशन फॉर्म, लाइक एलिनेशन, पीएसआईआर में भी है, सोशियो में भी है। तो उसमें हमने एलिनेशन को अच्छे से पढ़ लिया, जैसे कंपोनेंट पढ़ लिया, एलिनेशन फ्रॉम दिस, एलिनेशन फ्रॉम दैट, तो उसमें क्वेश्चन बट पीवाईक्यू में आएगा कि हाउ मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन इज रेलेवेंट इन मॉडर्न डे सोसाइटी, या कमोडिटी फेटिसिज्म का आ जाएगा। बहुत यार, उसके तो एग्जांपल्स है, कितने बोल दूं? सर, सब मैं लोग तो यार गेमिंग कर रहे हैं, यूथ वाले लोग गेमिंग कर रहे हैं, सब लोग। ओके देख लो यार कितना सर, आइसोलेशन हो रहा है उनका। हाँ, मैं ये एग्जांपल दिया जो इसमें पीएसआईआर इसमें दोनों कॉमन है, बट और भी सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें हैं एप्लीकेशन वाली, जहाँ पे सर जब एप्लीकेशन की बारी आती है तो फिर वो बहुत ही सुपरफिशियल हो जाता है, बहुत ही सुपरफिशियली मैं लिखता हूँ। मे बी आई एम लाइकिंग ऑब्जर्विंग ऑब्जर्वेशन स्किल, या फिर एप्लीकेशन वाला पार्ट मुझे नहीं आता है सही से, हाउ टू डील विद इट। इसके लिए यार टॉपर्स कॉपीज पढ़ लो तुम, तो उससे क्या होगा ना, वो कैसे डील कर रहे हैं ना एग्जांपल्स, एंड हाउ दे आर यूजिंग सम एग्जांपल्स इन दी, you start realizing कि how you need to do that. First of all, टॉपर्स कॉपीज पढ़ो। दूसरी चीज ना, गो स्टेप बाय स्टेप, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया, उससे रिलेटेड ना एक एग्जांपल्स की लिस्ट बना लो, उसके लिए टाइम जाने दो, मेक इट ग्रेजुअल, मेक इट स्लोली। ओके, तो उसके लिए वो काम करना कि क्या करना है हमें, कि एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके लिए प्रेजेंट रिलेवेंस इन मॉडर्न सोसाइटी के लिए मैंने 6, 7, 10 एग्जाम्पल कैलकुलेट किया है, तो उसमें से प्रॉपर मोस्ट रिलेवेंट एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, तो ये 2 हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से उसको लिखने की कोशिश करो। एक ही चीज बार बार लिखो, so that you can achieve certain level of quality in your answer, and you can achieve certain level of thinking in your approach. Got it? So do Yes, sir. उसी टॉपिक के लिए बार बार लिखो, आज लिख लिया, कल लिख लिया, या फिर एक बार में ही 5-6 बार लिख लिया, and then find out which one is the best. Okay, and then follow that and try to reflect or replicate that same pattern in the next topic. Answer. Okay. Yes. Yeah, Umesh. Thank you, sir. Got it. Yes. Yeah. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विशाल। सर जैसे
मतलब पेपर होता है, मतलब जीएस पेपर 1 है 2 है, तो इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से वेटेज होता है। जैसे जियोग्राफी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, तो इनका वेटेज ज्यादा है। और जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, मिडवर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इनका वेटेज कम है। तो इनके हिसाब से एक तो टाइम दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल और सर बिल्कुल। जैसे जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है GS1 का। देन सेकंड प्रायोरिटी आती है सोसाइटी को। देन आता है मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को। देन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस। देन अलॉट टाइम अकॉर्डिंगली। देन अगेन, अगर ज्योग्राफी और सोसाइटी के 3-3 रीडिंग्स कर रहे हो, 3 बार रिवीजन कर रहे हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के 2 बार या 3 बार कर लो। पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के सिर्फ 1 या 2 ही बार कर लो। ओके, तो अकॉर्डिंगली द वेटेज यू नीड टू प्रिपेयर एंड यू नीड टू फॉलो द अप्रोच। और सर जैसे आपने न्यू क्वेश्चन का बताया, जैसे ट्विस्टर वाला क्वेश्चन है, तो उसमें जैसे मतलब वहाँ पे एग्जाम हॉल में इमिडिएटली कुछ आएगा नहीं, जैसे आप लिखोगे तो नहीं उसमें नहीं, आता है यार, नेगेटिव। आता है, आता है विशाल। अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो उसके जनरल पॉइंट्स भी आएंगे। जैसे मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। ट्विस्टर का सवाल क्या था कि यहाँ पे क्यों बनते हैं। लोकेशन दिया था उन्होंने, गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि एटमॉस्फेरिक सिचुएशन क्या होती है वहां की, और ओशनिक सिचुएशन क्या होती है वहां की। सो आई ट्राइड टू कंबाइन दोस थिंग्स। और मुझे ये पता नहीं था कि ट्विस्टर होते क्या है, ओशनिक वाला concept है या फिर एटमॉस्फेयर वाला कॉन्सेप्ट। मैंने वो इस टर्म्स में लिखे थे, बाय correlating different geological processes, atmospheric processes happened in that region। फिर मैंने क्या किया था, उसकी ट्विस्टर की डायग्राम बनाई थी DNA जैसी। देन आई ड्रू द मैप, जो जिसमें मैंने गल्फ ऑफ अमेरिका दिखाया था। देन करंट्स यहाँ से आते हैं, फिर वहां पे जाते हैं। देन एटमॉस्फेरिक सिचुएशन क्या होती है, इससे क्या होता है, जनरल पॉइंट्स आएंगे एंड यू विल गेट 3 for 4 marks फॉर दिस। तो आता है वो, अगर अच्छे से ये पढ़ोगे ना, इसका प्रैक्टिस करोगे, तो ये वाले सवाल भी आप लिख सकते हो अच्छे से। और सर जैसे अभिजीत, आपने अभी बता। आई वुड लाइक टू से सम ऑफ द थिंग्स कि GS1 में या फिर GS में जब भी आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो ऐसा हाँ होता है कि यार ये वाला क्वेश्चन आता नहीं है, ये वाला टॉपिक छोड़ ही दो, ये वाला टॉपिक देखेंगे, टफ है। ऐसे करते करते क्या है ना, यू विल फाइंड कि आउट ऑफ 250 नंबर हम 50-60 नंबर तो पहले से छोड़ के ही जा रहे हैं। तो 190 यस का सर। ही हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मार्क्स कम आता है। और अभिजीत के जो मार्क्स हैं GS1 में 40 मार्क्स, ही हैज सीन जंप, सीधा जंप। 40 नंबर का क्लोज जंप ही हैज सीन। तो वो तभी आता है, थोड़ा देखो GS1 पेन देगा, बहुत ज्यादा देगा, ठीक है। और GS1 तैयारी में बहुत बड़ा पेन है, बट दोज हु टेक दिस पेन, दे सी द रैंक ना, सीधा फिर रैंक आता है ना। देख 40 नंबर तो मतलब यार लिस्ट में आप कहाँ से कहाँ। तो आप जो ये क्वेश्चन छोड़ने की बात करो, देखो एक आध क्वेश्चन सभी के लिए रहेगा जो अतरंगी सा रहेगा वहां पे मेंस में, बट वो एक आध ही रहे बस। ऐसा नहीं हो कि हम 5-6 तो खुद ही छोड़ गए थे, एक आध उन लोगों ने कुछ पूछ लिया, तो हमारे 7 क्वेश्चन गए, तो 70 मार्क तो हम पहले से ही आउट हैं। देन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट 110, 120, 125 नंबर। या प्लीज कंटिन्यू अभिजीत। यस, वही है कि अगर आप अच्छे से ये बेस प्रिपेयर कर लोगे ना, थीम्स वाली सब चीजें, दे कैन दैट विल मेक यू टू राइट सम ऑफ द जनरल पॉइंट्स इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। सो उस बेसिस पे आप ये सवाल भी टैकल कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड डोंट थिंक अबाउट द एक्सेप्शंस इन द प्रीलिम्स एज वेल एज इन द मेंस। यू हैव टू गो बाय द जनरलाइज अप्रोच। आपको 1-2 सवाल 3 सवाल वो देखने नहीं है कि यार आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ द सिलेबस आ गए है, तो मैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करूं। नो, द कंपटीशन लाइज इन दोज 17 और 18 क्वेश्चंस which are general in the nature, same for the mains and same for the prelims। तो सर जैसे मतलब Okay, एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसमें 8 to 10 क्वेश्चन है, मतलब वेल प्लान्ड आंसर लिखने होते हैं, मतलब बोलते हैं कि काफी अच्छे आंसर लिखने होते हैं। और जैसे 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं वो एवरेज लिखने होते हैं। और 3 to 4 क्वेश्चन उनको मतलब। ये दिमाग में ना, ये दिमाग से निकालो कि मुझे ये सवाल एक्सलेंट लिखने हैं, ये सवाल बिल्कुल नहीं। तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है वो ढूंढो, कि विद इन GS1 तुम्हारी स्ट्रेंथ लाइज करती है ज्योग्राफी में, सोसाइटी में, मॉडर्न हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में। सेम विद GS3,
तुम्हारी स्ट्रेंथ इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, या कौन सी है? तो वो स्ट्रेंथ वाले सवाल जो तुम्हारे है, जो तुम्हारी गुड पिच पे आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। देन जैसे मैंने कहा, पहले 2-3 सवालों में बिल्कुल ब्लंडर नहीं करना है। ठीक है। और ये ध्यान से निकालो यार कि अबव एवरेज लिखने, एवरेज लिखने, अपना बेस्ट देना है हर एक सवाल में। दैट्स इट। ओके। ओके सर, या जैसे आपने कल बताया था कि आपने पिछले अटेम्प्ट में मतलब डायग्राम फैक्ट्स इन पे ज्यादा फोकस किया था, तो मतलब आपके मार्क्स कुछ कम रह गए। नहीं, 2019 हाँ और 20 मतलब, में जो मेरा सेकंड और थर्ड इंटरव्यू था, फोर्थ इंटरव्यू में आई स्कोर मतलब 425। तो सर मतलब उसको कैसे मैनेजेबल किया फिर मतलब? वही तो ढूंढा मैंने कि व्हाट आई एम डूइंग। तो वो ओवरडू, डंपिंग ऑफ द कंटेंट, तो उसको मैंने अच्छे से पढ़ा था कि यार कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पे गलत जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज मैंने की थी, बैठा था मैं अपनी आंसर कॉपीज लेके कि वेदर आई एम फुलफिलिंग द डिमांड। ओके। एंड देन आई केम अप विद द मेंटरशिप प्रोग्राम विद एसओएमपी, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प किया था। सो दीज ऑफ द थिंग्स विच आई हैड डन इन द 2020 सेकेंड अटेम्प्ट। और सर जैसे मतलब आपने प्रीलिम्स के लिए बताया कि मतलब 5,000 6,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके विशाल, जाने वी विल, मेंस हाँ हाँ हाँ, मेंस के लिए मेंस के लिए नहीं, कुछ इसलिए कुछ टारगेट्स नहीं है, कुछ टारगेट नहीं है। ठीक है। ट्राई टू राइट ऑन अल्टरनेट डेज, एटलीस्ट मिनिमम अल्टरनेट डेज पे। जैसे मैंने कहा ना 3-5-7 वाला पैटर्न, वो अल्टरनेट डेज पे लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है। और मेंस से पहले जैसे दिसंबर तक ये ट्राई करो 8 देने में GS। तो पर पेपर 2 फुल लेंथ लिखनी है और ऑप्शनल की 4 फुल लेंथ लिखनी है, तो एटलीस्ट इतना तो कोशिश करो दिसंबर तक कर पाओ। ओके। 8 फुल लेंथ दिसंबर तक एंड 4 फुल लेंथ फॉर द ऑप्शनल। सर जैसे अभी ऐसे का जो मतलब पैटर्न है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया पिछले मतलब 3-4 सालों में। जैसे कोटेड बेस पे ऐसे आते हैं, तो मतलब उसके लिए मतलब मार्क्स इंप्रूव करने के लिए कैसे मतलब क्या स्ट्रेटजी रहती उसके लिए ना तुम्हें पुनीत सर बहुत सही एक सेशन लेंगे ऐसे के लिए कि यार ऐसे करना क्या है, क्योंकि सर हैज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दी ऐसे। ओके। है? क्योंकि मेरे तो यार ऐसे में डाउन हो गए मार्क्स, तो आई कैन नॉट टेल कि 140 135 से मैं डायरेक्टली 110 आ गया हूँ, तो मैं क्या बता पाऊंगा ठीक से। थैंक यू सर। या विशाल। ओके, तो लिस्ट वाले सवाल बताया मैंने सर, सजेशन फॉर द बिगिनर, how much space should be allocated. ओके, अभिजीत, अभिजीत इज है नहीं यहाँ पे, तो उसने पूछ should be allocated to the which part, तो इट डिपेंड्स कि कितने पार्ट्स है, कितना उसका वेटेज है। ओके। उस पर डिपेंड करता है वो। Sir, I have done my prelims section properly, but I don't have any knowledge about means. What should be the right strategy for me and how I can proceed? तो वही है यार कि यार सिलेबस ले लो अपना। ठीक है। ऑप्शनल डिसाइड करो, ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड मेक टारगेट्स। जैसे सितंबर तक मैं मेरी प्रॉपर रीडिंग खत्म कर दूंगा GS1 GS2 GS3 GS4 की, तो उसके लिए जो भी रिसोर्सेस है उनकी मैं अक्टूबर अलॉट करूंगा माइक्रो नोट्स या नोट्स बनाने के लिए। उसमें मैं टॉपर्स कॉपीज भी पढ़ूंगा और ये भी करूंगा। देन इन द नवंबर एंड दिसंबर आई विल प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। ओके। सो दैट शुड बी द ब्रॉडर स्ट्रेटेजी टिल दिसंबर, कि मुझे अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर तक 3 महीने में मुझे पूरे GS के पेपर बिगिनर है ना जो, उनके लिए बता रहा हूँ कि ये 3 महीने में मुझे प्रॉपर रीडिंग कंप्लीट करनी है अच्छे से विद द सिलेबस। एंड देन करना है हमें अक्टूबर में नोट्स मेकिंग, पर वीक एक GS पेपर के नोट्स बनाने हैं हमें। ठीक है। एंड देन इन सितंबर, सॉरी, नवंबर एंड दिसंबर हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। सो दोज हु आर बिगिनर, दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। ओके। सर जैसे मतलब पर पेपर 100 पेजेस से ज्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल।
जितना कम हो ना अच्छा है विशाल, उससे ना तुम रिफ्लेक्ट कर पाओगे जो भी पढ़ रहे हो ना। देखो इशू क्या है ना, वी रीड लॉट ऑफ थिंग्स बट वी कैन नॉट present them in our answer. So that is the issue. There is a huge gap. So try to abridge that gap. Try to reduce that gap. And how you can do that? By limiting your content and by practicing to reflect or to replicate that content in your answer. जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें कि मैंने एक आर्ट एंड कल्चर पे या फिर इथिक्स के किसी टॉपिक पे मैंने आंसर लिख लिया और तुमने उस टॉपिक पे नोट्स बना लिए, ठीक है? तो वो नोट्स लेने हैं, तुम्हारा आंसर लेना है, एंड देन फाइंड आउट कि तुम्हारे नोट्स में से कितने पॉइंट्स तुमने यहाँ पे लिखे नहीं है, एंड देन वो रेड पेन से या फिर किसी दूसरे पेन से लिखने हैं जिससे हाईलाइट हो जाए कि यार मैंने ये पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। एंड बार बार ये प्रैक्टिस करनी है हर एक टॉपिक पे, सो दैट द पॉइंट्स विच आर राइटिंग इन योर नोट्स will become your muscle memory and then you can replicate in your answer. Okay? बताया ना यार मैंने कि कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कि you need to understand the syllabus, then you need to start the preparation by reading standard books, notes, ठीक है, जो भी रिसोर्स तुम फॉलो कर रहे हो, and make targets so that you could complete your all GS papers till September. Then October should be your notes making month, and then in those notes making try to make ready made notes, and then नवंबर एंड दिसंबर में तुम्हें सिर्फ आंसर प्रैक्टिस करनी है, वो कंटेंट एंड योर नोट्स को रिवाइज करना है बस। ओके, यस सर। नाउ if there is no one to ask, then we could wrap up this session. I hope everyone questions is answered by sir, and it was a very great session that brings lot of strategic values and inputs in front of us. And yes, tomorrow again, let's meet for the prelims strategy and how to approach it. And thank you, sir, for taking this session. Yes, it's my pleasure. Chalo, everybody have a good day. And like I said this in earlier session also, slowly is the fastest dream or to clear this examination. Okay? Yes. Bye. Have a good day.